صوبائی صدر ہیں، وفاقی وزیر ہیں برائے کشمیر کے امور کے اور گلگت بلتستان کے سفیر ہیں امیر مقام صاحب، بے انتہائی معزز مہمان پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں امیر مقام صاحب. سب سے پہلے ذرا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے حوالے سے دوبارہ بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں کچھ صحافی ہیں، اس پہ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں باقاعدہ. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ آئے بھی، ان سے خان صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، انہوں نے بھی یہ کوشش کی لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی. اب پارٹی کے اندر ان پالیسیز کے حوالے سے ایک الگ اختلاف آ رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس سے اختلاف کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا تحریک انصاف کے لیے دروازے کھلے ہیں، کھل گئے ہیں؟ کئی سپوکس مین، کئی مختلف لوگ لگے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے ہیں. میں کے پی میں بیٹھا ہوں، اگر کے پی کی ہم نے کبھی دیکھی نہیں کہ کیبنٹ کے ممبر اپنے صوبے کے چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر کے پیچھے اور اس پر اعتراضات، اور چیف منسٹر اپنے وزراء پر اعتراضات، اور ان کے آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. ہر ایک اپنا سٹانس، اپنا بیان. پارٹی کی لیڈرشپ ایک طرف صوبے میں اور وہی ایڈمنسٹریٹ اور وہ اختیارات دوسری طرف. اس طرح آپ سینٹر میں دیکھیں کہ سینٹر میں اس کی کوئی ایک بات ہے نہیں، ایک سپوکس مین نہیں ہے. مطلب ہے اگر اس کے چیئرمین ہے تو اس کے ساتھ اختیار ہونی چاہیے. وہ پھر گوھر، پھر جنرل سیکرٹری کا اپنا سٹانس اور اپوزیشن لیڈر کا اپنا سٹانس، دوسرے کئی لیڈر آ رہے ہیں اس کی اپنی سٹانس. ابھی اعظم سواتی صاحب نکل کے انہیں کوئی نئی پٹی شروع کی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ باہر سے لوگ آئے، وہ اندر ہے مجھے خان نے اس طرح کہہ دیا، اس طرح کہہ دیا. تو ان کی باتوں پر، ان کی باتوں اور اس میں جانا چاہیے نہیں. پہلے وہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد اس طرح الائنس بنائیں گے، اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، احتجاج کریں گے. تو بجائے وہی الائنس اور ان چیزوں کے وہ آپس میں الجھ پڑے اور ابھی ایک دوسرے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے سب کے سامنے ہے کہ ان کا کیا سوچے، کیا فکر ہے. تو اس طرح آپ نے جو سوال کیا تو اس طرح اس کی کوئی ایک پوائنٹ آف ویو نہیں. اور اچھی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس سسٹم کا حصہ ہے، اس نظام کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے. اور ہر ایک آپ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں، جوڈیشری کو دیکھیں، دوسرے کو دیکھیں، سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں، عوام تک، ہر ایک تک، صحافیوں بارے کو، سب کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. ملک اب سب کا ہے اور اس طرح جب ایشوز آتے ریاست کے، اسٹیٹ کے، اس پر سب کی ایک سٹانس ہونی چاہیے. مگر بدقسمتی ان کا ایجنڈا جو بھی ہے تو اس کے 180 ڈگری مخالفت کرا اور اپنے ذات سے اس سے ہٹ کر کوئی چیز آج تک ہم نے نہ دیکھی نہ دیکھنے میں ملا. اچھا امیر مقام صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو مائنز اینڈ منرلز کا مجوزہ بل ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ عمران خان صاحب کی منظوری سے مشروط کر رہی ہے. جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس کو مسترد کر رہی ہیں. اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ خان صاحب اپنی حکومت کے خلاف جا کر اپوزیشن کی مان کر اسے مسترد کر دیتے ہیں تو پھر وفاق کے پاس کیا آپشن ہوگا سر؟ ابھی مائن اینڈ منرل کا عمران خان کے ساتھ اور اس کی اپروول، اس کے کیا تعلق ہے؟ اس کی ایک پارٹی ہے، ایک سسٹم ہے، ایک صوبہ ہے، پارلیمانی پارٹی ہے، اس کے چیف منسٹر ہے، اس کی گورنمنٹ ہے، وہ کے پی اسمبلی ہے. عمران خان صاحب میرا طرح کون سا بیرسٹر ہے، کون سا بڑا وکیل ہے، کون سا اس کو آئین اور قانون پر مہارت حاصل ہے؟ کرکٹ کی بات اگر کرے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں انٹرویو لوں گا کہ کس طرح اس کو دیکھوں گا، تو ٹھیک ہے. مگر آئین اور قانون اور اس طرح باتوں میں تو ان کی اگر اتنی پارٹی میں اتنے لوگ نہیں کہ وہ بات سمجھتے کہ یہ کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. یہ بل تو میرا نہیں ہے، حکومت فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی بل وہی نہیں دیا ہے. یا ہم کے پی کے میں اپوزیشن میں ہم نے کوئی بل نہیں دیا ہے کہ وہ اس پر کرے کہ یہ ہونا چاہیے وہ. یہ بل تو ان کی اپنی بل ہے، خود ان کی گورنمنٹ نے بل لائے. اگر بل پر اپوزیشن کے بھی ریزرویشن ہوں گے، ان کو بھی حق ہے جو پارلیمنٹ کے ممبر ہے کہ اس پر اظہار کرے. اس کے اگر پی ٹی آئی کے کسی کو بھی اس پر تحفظات ہے تو ان کے ساتھ کئی وکلا ہے، اس طرح اس پر لوگ ہے کہ واقعی صوبے کی بہت مختاری پر آنچ نہیں آنی چاہیے. جو لوگ ہم بھی یہ کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں. تو اگر کوئی اس طرح چیز ہے تو آپس میں بیٹھ کر اس کو حل کرے. تو اس کو عمران خان کے ساتھ لنک کرنا، اس کی رہائی، اس کے بہنے کہتے ہیں عمران خان تب تک ریحان ہو تو بل پاس نہیں ہوتے. یہ کسی کے باپ کا بل ہے، یہ تو اگر وہی مائن منرل جو کئی 100 سالوں سے
इन पहाड़ों के अंदर वही रिसोर्सेज दबे हुए और उनको अगर निकाला जाए तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी, फिर सबसे ज्यादा हमारे सूबे की बेहतरी होगी, उन आवाम की बेहतरी होगी, किसी को रोजगार मिलेगा, जॉब मिलेगा। अलबत्ता ये जरूर है कि सूबाई खुद मुख्तारी पर और उनके रोल पर कोई आंच ना आ जाए। सही। अच्छा अमीर साहब, अब जरा आपकी पार्टी के मामलात पर भी आ जाते हैं। पिछले दिनों लाहौर में पार्टी इजलास हुआ जिसमें आप भी थे, दीगर रहनुमा भी थे, जिन्होंने मियाँ साहब को ये मशवरा दिया कि वो KPK का दौरा करें, और फिर हमें सुनने में आया कि मियाँ साहब दौरा भी करेंगे, लेकिन अब इस बात को भी 1.5 महीना गुजर गया। इससे पहले सितंबर में भी इस तरह की इत्तलात आई थी कि मियाँ साहब खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे, उस वक्त भी नहीं हुआ था ये दौरा। नहीं, मतलब है कि मैं सब जरूर आएंगे, पहले माजी में भी आता रहा और अब भी आएंगे। वो तो चेकअप के लिए अभी लंदन गए और जब वापस आए जरूर आएंगे। और अभी तो इस तरह दौर आया है कि आने जाने के बगैर उसके साथ मुलाकात भी होता है। हम सबकी ख्वाहिश होती है। कल जो हमने मैं सब इस तरह शाश बशाश और वही बेलारूस में देख लिया, तो हमारे यहाँ वर्करों की भी ये ख्वाहिश है कि मैं सब आ जाए हमारे साथ भी इस तरह घूमे फिरे, आप उसको देख ले सुन ले, एक अच्छी बात। मगर वही उसकी बदस्तूर जारी है, इसमें कोई इस तरह ब्रेक नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आई। सर पिछले महीने जब कैबिनेट एक्सपेंड की वजीर आजम साहब ने, तो उसमें परवेज खटक साहब को भी शामिल किया गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से बड़ी आवाज़ें आई, बड़ी एतराज़ात हुए इस पर। फिर इसी दौरे से जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, उससे जुड़ी हुई कुछ ये भी इत्तलात आई कि जब मियाँ साहब KPK आएंगे तो परवेज खटक साहब जो है वो बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार करेंगे PMLN के अंदर। तो अगर सर ऐसा होता है तो कोई एतराज़ नहीं है आपको? कोई एतराज़ नहीं है, मतलब है कि ये हमारी इंडिपेंडेंट कोई गवर्नमेंट नहीं है। हम इतराज तब कर सकते थे कि हमारी इस तरह 2/3 मेजॉरिटी, तो क्या कि सिंपल मेजॉरिटी की हमारी गवर्नमेंट होती, हमारी हुकूमत होती, तो फिर हम इसमें बात कर सकते। तो इसमें कोई हमें न कोई इतराज है। अच्छी बात है कि वो शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप, वो इस कैबिनेट को लीड कर रहे हैं, हमारा लीडर है, उसकी लीडरशिप में आए और अपना एक्सपीरियंस और इनपुट इस मुल्क के लिए और अपने सूबे के लिए इस्तेमाल करे, अपने माजी और तजुर्बात को देखते हुए। तो बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। हमने पहले भी उसको वेलकम कहा है और आइंदा भी कहेंगे। इस बार इस पार्टी ने की तो सच इस तरह कोई बात नहीं। सर परवेज खटक साहब, और हो भी सकती है, सब कुछ हो सकता है। सर परवेज खटक साहब जो हैं वो अपने दौर में सूबाई सदर भी रहे हैं, सूबे के वजीर आला भी रहे हैं, साबिक वजीर दिफा भी रहे हैं। अब अगर बात हो रही है कि वो PMLN में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो यकीनन उनको कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा। अगर परवेज खटक को नून लीग की खैबर पख्तूनख्वा की सदारत दी जाती है तो कोई एतराज नहीं है आपको? जो भी जिसके लिए डिजर्व करता है और डिलीवर कर सकते हैं, तो में से इस बात में से कौन सी बुराई है जो जिसका हकदार हो सकता है। और लीडरशिप ये सारी चीजें देखते हैं कि किसको क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, अपने वर्करों और उसकी मूड को भी देखते हैं और उस बंदे की डिलीवरी को भी देख रहे हैं। तो अगर कोई बंदा पार्टी के लिए बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, मुल्क के लिए बेहतर डिलीवर सकते हैं, तो वही नाट उसका हक है, राइट है, उसको मिलना चाहिए। और फिलहाल जो बात इस तरह कोई बात और डिस्कशन न हुई है और न है। ठीक है अमीर मकाम साहब, पिछले 12 साल से सर KPK में PTI की हुकूमत है और वहाँ पर PMLN से आप जैसी, कैप्टन सफदर जैसी कदावर शख्सियात मौजूद हैं, लेकिन क्या वजह है सर कि इलेक्शंस में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर पाए आप लोग? क्या वजह है इसकी? आपने अच्छा सवाल किया और बात अगर आप देख ले तो वही PMLN की वाकई जब 99 का इंसिडेंट हुआ था, फिर PMLN टूट गई और उसकी मेजॉरिटी का हिस्सा PML किया वो से निकल गया और वही बन गया। और PMLN अगर आपकी 2002 की इलेक्शन के नताइज देख ले और 2008 के नताइज देख ले तो कोई 2-3 सीटों से ज्यादा कामयाबी नहीं हुआ और वोट बैंक भी हमारा काफी गिर गया। तो अल्लाह ताला का एहसान है कि अभी वही वोट बैंक भी काफी पहले से कई गुना इम्प्रूव हुआ और आज की बदतरीन सूरत हाल में मैं आपको यह कहने वाला हूँ कि आज जो हालात है सारे पार्टियों के लिए, कोई माने न माने जो लहर और वेव PTI की आई है और अल्लाह ताला करे कि जल्दी खत्म हो, वही वेव में ये सिर्फ PMLN की नहीं है, ये सारे पार्टियों, अगर आप अवामी नेशनल पार्टी को देखें कितनी बड़ी पार्टी है, उनकी कौमी असेंबली में एक सीट है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ KPK में
फजल रहमान साहब को देखें कि हुकूमत का हिस्सा भी कई दफा रहा है, हुकूमतें भी रही है, क्या उसकी पार्टी की वही 3 सीटें उन्होंने ली है और इस तरह हमने ली थी मिलन ने, क्या पीपल पार्टी की 1 सीट उन्होंने नेशनल असम्बली में ली, शेरपाव साहब की पार्टी किधर गई, जुमात इस्लामी आप देख लेंगे एक तारीख है KPK में कि जुमात इस्लामी की पूरी लीडरशिप हाजी साहब से लेकर सिराजुल हक साहब से लेकर क्या उन्होंने कोई एक सिंगल सीट जीती है सूबे में या मरकज में। ये तो फिर भी अल्लाह ताला का एहसान है कि दूसरे पार्टी के मुकाबले में आज भी नेशनल असम्बली में हमारे 4 कौमी असम्बली के मेंबरान भी आए हैं KPK से, और सूबाई असम्बली में हम लार्जेस्ट पार्टी है। अपोजिशन लीडर KP असम्बली में PMLN का है, और वही मेरा भाई छोटा भाई डॉक्टर इबाद जो 2 दफा कौमी असम्बली का मेंबर रहा, अभी KP असम्बली में अपोजिशन लीडर है। तो इस तरह बात ये तो सारे पार्टियों के साथ हुआ, तो फिर भी इन हालात में PMLN को जिंदा रखना और उसका वजूद या सूबाई असम्बली में भी कायम रखना और कौमी असम्बली में भी और आवाम में भी कायम रखना बहुत बड़ी बात है नहीं है। और आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ये वक्त भी चयन करेगा, जैसे भी बेहतरी आ जाए। सर, सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है, हाई कोर्ट के अहकामात हैं, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबात नहीं करवा रहा है, क्या राय है इस पर आपकी? नहीं, मैं भी कहता हूँ कि जरूर KP में KPK की नुमाइंदगी सेनेट में होनी चाहिए, जो इसी दफा अभी तक इंतखाबात नहीं हुए, और जिसकी जिम्मेदारी है उनको अदा कर लेने चाहिए। जिस पार्टी और जहाँ से लोग आना है, मगर एक सूबे का राइट हाथ है, अल्लाह करे कि वही जो हमारी नुमाइंदगी आ जाए वो सूबे के लिए काम करे, इस सूबे के गरीब आवाम के लिए काम करे, न कि अपने जाती मफादात और किसी इंडिविजुअल के लिए काम करे। मगर इस सूबे का हक है और राइट है, और सूबे को हर सूरत में अपना हिस्सा मिलनी चाहिए। अमीर मकाम साहब, जब से हुकूमत का आगाज हुआ, इनफैक्ट उससे पहले भी PDM 1 के दौर में भी हमने देखा बार बार खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें होती रही, तो क्या अब हालात तब्दील हो गए हैं? अब ऐसा कोई इम्कान नहीं है? नहीं, फिलहाल पहले इस तरह टाइम आया था और ये हम सोच भी रहे थे और इस तरह एक मौका था, मगर फिलहाल कोई इस तरह हालात नहीं है गवर्नर राज और इसके लगाने के। और वही सूबे की ये बाहर की बात है, एक तरह की है, ये और बात है, और सियासत में डाइजेस्ट करने के लिए जो भी बात करते हैं हमारा भी ऐसा जिस तरह वही नौबत नहीं है गवर्नर राज की। और अक्सर इश्यूज पर सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन भी है और मजीद बेहतर होने की भी ज़रूरत है। बेहतर होने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमीर मकाम साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। हम गुफ्तगू हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से।